तो आज जैसा आप जानते हैं एमबीए का एएमयू में एग्ज़ाम हुआ है, एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है, तो स्टूडेंट से हम बात करते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि एग्ज़ाम कैसा था और कौन सा पोर्शन हार्ड था और बाकी भी क्वेश्चन करेंगे। आप वीडियो देख रहिए। तो सबसे पहले आप अपना एक छोटा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। My name is Mohammad Shiraz Alam and I am a student of Aligarh Muslim University and I completed my graduation in economics and I did my plus 2 from here only and I just appeared for the MBA entrance and the entrance gone quite well. So how was the entrance like? It was lengthy or difficult, easy? It was actually lengthy, I think so. It's my point of view and as a point of... It was difficult or easy? I can't really say that because the people are saying it's a bit easy. Some are saying that it's really difficult. But is there any particular portion? For me, it was quite lengthy. That's why it was difficult. So, is there any portion which you feel like it was very difficult or time consuming? No. What about the maths? Maths was like familiar to the earlier previous year papers, and they just asked the same question, the repeated questions. But the thing is that now the question was just lengthy, so that's why I wasn't able to appear all the questions. But yes, I marked 60 questions. As many students was asking in comments like till how month they are asking the general knowledge questions and current affairs. So I haven't appeared for general knowledge question because I'm there zero. So I know, so because there is a negative marking also in MU, so that's why I have to think about before answering. I have to think twice because if answer doesn't go on my side, it will go for a negative marking. Like there's a pandemic, COVID-19 is running and still there is no medicines discovered. So what precautions AMU is taking and how was the precautions? AMU is taking a lot of precautions. They are sanitizing the hands and giving the mask also. I got the mask from administration only. Okay. And thank you administration for the mask. I haven't bought my mask. I forgot to wear the mask and but there is a rule like we have to wear the mask. Yes, and they are supporting too. If the then why you are not wearing mask and not bringing? I was sleeping. Actually, okay. I woke up late and I have to run for the paper, so I don't know how it slipped from my mind. Okay. I don't know. So it is nice to talk to you. तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट है जो बात कर देंगे। अब उनसे बात करते हैं कि एमबीए का एंट्रेंस कैसा हुआ, उनसे पूछते हैं। तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद हामिद है, मैं यहीं बीकॉम ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो जैसे आप जानते होंगे इंटरनल स्टूडेंट्स हैं, बहुत पहले एग्ज़ाम भी दे चुके होंगे, क्वालिफाइड भी कर चुके हैं माशाल्लाह पहले। तो आपको कैसा लगा, मतलब एएमयू का पैटर्न जो हार्ड आ रहा है या इजी आ रहा है? मतलब जैसे आपको 8-9 महीने का टाइम मिल गया, तो आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? टाइम के हिसाब से तो कहा जाए कि हार्ड नहीं था, क्योंकि ये पिछले पेपर के बिल्कुल करीब ही था। कुछ अलग से इसमें, जैसे अभी कल का पेपर हुआ जामिया का, परसों का पेपर, तो उसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे। तो उन्होंने दिखाया कि हाँ भाई, अगर आपको इतना टाइम मिला है तो आपको प्रिपेयर करना था। कंपैरेटिवली जामिया ने एमबीए बहुत ज़्यादा टफ कर दिया एएमयू से। जामिया ने तो बिल्कुल काट के बराबर कर दिया। एमयू ने तो फिर भी लाज रख ली है। एएमयू ने बेसिक लेवल ही दिया है, वही जो नॉर्मल आता है, या फिर कुछ चेंज था? लेवल तो बिल्कुल बराबर ही था जैसे पहले था। बस ये जो जैसे भाई ने कहा कि टाइम कंज्यूमिंग था, तो मैथ के जो क्वेश्चंस थे वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग थे और इंग्लिश पोर्शन बिल्कुल ठीक ठाक था। और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन तो अगर आपके आते हो तो ठीक है। करंट अफेयर्स का पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स की, अभी तक आ रहे हैं या पहले जो टाइम था उसी तक आ रहे हैं? जैसे अब कोरोना वगैरह से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था या नहीं? नहीं, कोरोना वगैरह से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था। और मेनली एमयू एमबीए में ज़्यादातर जनरल नॉलेज के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर से बहुत मुश्किल से एक मैथ्स पोर्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? या फिर मैं ओवरऑल एक आपसे पूछता हूँ कि नेक्स्ट ईयर भी ये वीडियो देखते रहेंगे? 1 मिनट रुक जाइए, अजान हो रही है। तो जैसे अजान हो गई थी तो हमने ब्रेक लिया, एक पहले भी वीडियो में इशू हो गया था, इसलिए ब्रेक लेना चाहिए। मैं क्वेश्चन जो कर रहा था आपसे, क्वेश्चन ये था कि नेक्स्ट ईयर भी ये वीडियो देखते रहेंगे, वीडियो यूट्यूब पे है तो हमेशा देखते रहेंगे। तो आगे स्टूडेंट्स जो अप्लाई करेंगे एमबीए में, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप, क्या गाइड करना चाहेंगे? उनके लिए सबसे ज़रूरी है कि वो टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखें, किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। अगर क्वेश्चन पे उनके नहीं हो रहा है तो उस पर ज़्यादा वक्त ना दें, उसको स्किप कर दें, वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल जाए। ये गलती हर बार हर स्टूडेंट से होती है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल। वो एक क्वेश्चन पे 5-10 मिनट टाइम दे देते हैं
लास्ट में जाके वही भारी पड़ जाता है। तो एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम ना दें, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ दें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल जाएं। कहाँ से पढ़ें, कोई आप सजेशन देना चाहेंगे? बेसिक मैथ है, 10 12 11 12 की मैथ है, उसी को पढ़ें बराबर से। बाकी कोई अलग से बुक का सजेशन तो मैं नहीं दे सकता, कोई भी बुक पढ़ें, बस तो ठीक से पढ़ें। आपसे बात करके हमें अच्छा लगा। और यहाँ पर एक और स्टूडेंट हैं जो आज एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं। सबसे पहले आप अपना एक इंट्रो दे दीजिए। जी, मेरा नाम अरहम मुशफ़िक अंसारी है और मैं इंटरनल स्टूडेंट हूँ, यहीं का बीकॉम का, मैंने यहीं से बीकॉम किया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे कोरोना वायरस चल रहा है और बहुत सारे, फिर भी एक टेंशन है, एग्ज़ाम करा रहा है, एएमयू एक रिस्क ले रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? रिस्क ले रहा है तो आपको प्रिकॉशंस वगैरह भी दे रहा है कि सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह में, वैसे सभी स्टूडेंट्स बताए डिस्टेंस वगैरह मेंटेन है, सैनिटाइज़ करा रहे हैं, तो क्या ये सच है? कितना सच है, कितना झूठा, आप ये बताइए। देखिए, जितनी प्रिकॉशंस यूनिवर्सिटी ने मेंटेन की है उतना ही देखा जाए तो स्टूडेंट्स ने भी किया, और स्टूडेंट ने इतनी ज़्यादा की है कि स्टूडेंट्स आए ही नहीं है। इतनी स्ट्रेंथ कम थी आज के एग्ज़ाम में, जो मतलब मेरी क्लास में कम से कम 40% स्टूडेंट्स नहीं थे। और जैसा कि आपने भी देखा होगा अपनी क्लास में, और जैसे हम सब ने देखा, बहुत कम स्टूडेंट्स आए थे। तो इससे तो शायद हो सकता है कंपटीशन पे थोड़ा सा फ़र्क पड़े, है ना। और प्रिकॉशन तो अच्छे से ही लिए गए एकदम। और पता है क्या, इतना डिस्टेंस है कि मैं यूँ भी नहीं कर सकता, भाई सुन ले। अच्छा, तो आपको अच्छा खासा डिस्टेंस दिया गया? बहुत ज़्यादा, 2 सीट का डिफरेंस था मेरे बीच में तो अच्छा। एक स्टूडेंट से। तो उसमें फिर आपका डिस्टेंस भी मेंटेन किया गया। बाकी मास्क आपका कहाँ है? मास्क हमने अभी भी उतारा था, सॉरी, वो हम लगा लेते हैं, नो तो प्रॉब्लम। मास्क आपका वहाँ पर भी ऐसे ही कर दिया था कि क्लास में एंटर होकर उतार दिया वो मैंने अभी उतारा है, जब मैं इधर आया तो निकल के क्लास तो अब हम पेपर पे आते हैं। पेपर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ओवरऑल बात बता दीजिए आप, जितना देखिए, मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, जब हमने करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले मैथ्स ही छुई हमने। मैथ्स से करना स्टार्ट किया तो इतना अंदाज़ा नहीं था कि मैथ्स इतना टाइम लगेगी। थोड़ी सी मैथ्स लेंदी थी, टफ़ नहीं थी, ईजी था पेपर आज का। देखा जाए तो मेरिट सही जानी चाहिए, लेकिन स्टूडेंट्स की शिकायत रही है आज की। सब ने कहा कि नहीं यार, पेपर लेंदी था, कम क्वेश्चंस कर पाए, ये वो। तो इस हिसाब से देख तो ओवरऑल वो कंपनसेट होके इधर उधर तो अराउंड ही तो जितना लास्ट ईयर की होगी उतना ही चली जाएगी। क्वेश्चन सबको आते थे, लेकिन टाइम की वजह से अटेम्प्ट नहीं कर पाए। पेपर इजी था, मैं कहूँगा पेपर इजी था। तो और पेपर में कुछ नहीं था, पूरा बेसिक था, एकदम सही है। जीके भी हार्ड नहीं थी और रीजनिंग भी अच्छी थी, बाकी इंग्लिश भी इतनी हार्ड नहीं थी। तो प्रिपरेशन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स को जो वीडियो देख रहे हैं या फिर आगे अप्लाई करना चाहते हैं कि कैसे प्रिपेयर किया जाए या क्या बातें ध्यान रखी जाए? बहुत ज़्यादा टेंशन लेके कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजी पेपर आता है। और देखा जाए तो सिर्फ आपको बेसिक आना चाहिए, आपका बेसिक क्लियर है हर चीज़ में तो आप कर पाओगे, बिल्कुल कर लोगे एकदम बिना किसी टेंशन के कर लोगे आप। तो चलिए, आपसे बात, ये स्टूडेंट्स से हमने बात की है, इनसे पूछा गया है कि क्या था, सब आप जान ही चुके हैं, मैं रिपीट करके क्या ही बताऊं। बाकी टाइम कंज्यूमिंग था, टाइम का आप ख्याल रखिएगा आगे से। और यही रहा है कट ऑफ के बारे में भी, कट ऑफ अच्छी खासी जानी चाहिए क्योंकि पेपर ज़्यादा टफ नहीं था, ईजी थे, सभी पोर्शन ईजी दे दिए गए थे। और वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए, गाइडेंस चाहिए तो चैनल पर बने रहिए। और लाइक कर तो बिल्कुल ही कर देंगे, इतनी मेहनत से मैं बना रहा हूँ, स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ, आपको बताता हूँ हर चीज़। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आपको गाइडेंस मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।